Hello everyone, welcome to the video of chapter number 1 World Wide Web. Myself Preeti Godha. So let us begin the chapter. What do you mean by World Wide Web? Nowadays we are accessing internet. How we are accessing it? How we are getting all the information? So when we are accessing the internet, we are using HTTP. HTTP that means Hypertext Transfer Protocol. This is the only one language which is spoken over the internet. When we are transmitting the data, we must have to access HTTP. HTTP that means when we are sharing our data. So in this, when we are using the web services, the HTTP allows us to communicate or to exchange of information over the internet. So this HTTP support us to access the internet to share our information. All the informations which is uploaded on the internet is done via Internet Explorer, Firefox. This called as browsers. When we are using any of the browser like Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, all these are called as the Google. All these are called as the web browsers, which support to upload or download the web documents. Web documents, the first page which is appearing on the internet, the documents which is appearing on the internet, it is called as web documents. जो आपको इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, पेजेस मिलते हैं, उनको हम वेब डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस बोलते हैं. और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ लिंक्स भी होती है, ब्लू कलर की लिंक प्रोवाइड होती है, तो दैट लिंक्स आर नोन एज हाइपरलिंक. Web documents can contain graphics, sounds, text, audios, videos, etc. can be there on the web documents. It is not compulsory that only the document will be there. We can have graphics like sound, audio, video can be there on the web documents. So we can say that the World Wide Web is one set of software which is used on the internet. Internet itself is the global, so we can connect multiple devices on it. Computing devices we can connect. Global area network is there on the internet, so we can connect multiple devices over the internet. When we are connecting the devices, then the communication can be done through its HTTP. HTTP supports us to communicate. So the World Wide Web is the subset of this interaction which supports our websites and URLs. URLs मतलब कि web address जो link है उसे हम URL बोलते हैं. The full form of URL is Uniform Resource Locator. So what are the components of the web? Web के क्या क्या components होते हैं? तो we have 4 different components. Web client जो कंप्यूटर को एक्सेस करता है, जो मशीन को, सिस्टम को एक्सेस करता है ओवर द वेब, दैट इज कॉल्ड एज द वेब क्लाइंट. जैसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अगर हमारा कंप्यूटर कहीं पर कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वेब क्लाइंट. वेब सर्वर, वेब सर्वर जो उसको होस्ट करवा रहा है, वेब सर्वर जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, प्रोसेस हो रही है, डिलीवर हो रही है, कहाँ से? वेब पेजेस से वेब क्लाइंट्स तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. वेब पेज से अगर किसी क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो वेब सर्वर कहलाता है, जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है या जिस पर हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, उस सर्वर को हम वेब सर्वर कहते हैं. When the communication will be there between the clients and the server, that communication is done through the HTTP. We already know that. And that communications, when we are getting any of the information through any of the source, जब किसी सोर्स से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या हम किसी सोर्स पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट सोर्स इज नोन एज द वेब सर्वर. दैट सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन सर्वर और होस्ट कंप्यूटर. द नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या होता है? जहां पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकते हो. कॉमनली वी कैन से दैट दिस इज द ब्राउजर ओनली. ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जहां से हम अपने इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ट्रावर्सिंग भी कर सकते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं किसी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, फायरफॉक्स, ऑल दिस आर कॉल्ड एज द वेब ब्राउजर्स. देन नेक्स्ट है ISP, Internet Service Provider. Internet Service Provider is an organization which allows the various services when we are participating on the internet.
These are the companies that provide the services to their customers to access internet by providing dial-up, cable, modem, wireless और dedicated high-speed internet कनेक्शंस. जब हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो हमें वो कनेक्शन सर्विसेज मिलती है. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो वो हम इंटरनेट की सर्विसेज किसी के भी थ्रू ले सकते हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन, दैट मीन्स टेलीफोन लाइंस के थ्रू, केबल के थ्रू, मॉडेम के थ्रू, वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू. किसी भी कनेक्शन से जब हमें इंटरनेट स्पीड मिलती है तो वो जो प्रोवाइडेड सर्विसेज होती है उन सर्विसेज को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. वर्किंग ऑफ द वेब, वेब की वर्किंग कैसे होती है? तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्किंग, हाउ द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ओवर द वेब. तो जब भी हम किसी वेब डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो वो कहाँ पर सेव होते हैं? वो वेब सर्वर पर सेव होते हैं. और वेब सर्वर हमारा कैसा होता है? ग्लोबली एक्सेस्ड इंटरनेट होता है विच इज कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट मीन्स आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर वेब सर्वर पर अपलोड कर रहे हो तो दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑफ द यूजर ओवर द वर्ल्ड. नेक्स्ट होता है अगर हम किसी वेब पेजेस या किसी डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट या एक्सेस कर रहे हैं तो उसके हर एक वेब पेज का अपना एक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज URL. और वो एड्रेस हमें कहाँ मिलता है? एड्रेस बार पर मिलता है, सबसे टॉप में एड्रेस बार पर मिलता है. तो उस एड्रेस बार के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. लाइक दैट अगर आप इस बुक के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो अगर हमें प्राची पब्लिकेशंस की बुक को सर्च करना है तो हमें प्राची पब्लिकेशन का जो एड्रेस है वही डालना होगा, लाइक www.prachibooks.com. ओके, हर किसी का एक एड्रेस होता है, तो जो एड्रेस होगा अगर हम उस एड्रेस को प्रॉपर डालेंगे तो वी विल गेट द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. दैट मीन्स द सर्वर ट्रांसमिट द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट मशीन. जो भी सर्वर होता है, मेन सर्वर जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो किसको मिल जाती है? क्लाइंट मशीन को मिल जाती है. नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन द वेब. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं वेब पर? तो फर्स्ट होता है हमारा HTTP. What do you mean by the word protocol? Protocol, that means the set of rules that needed to be followed during the data communication. जब आप communication कर रहे हो, जब आप अपना data transfer कर रहे हो one place to another place, one server to another server, तो what are the rules we have to follow? That is discussed under the protocols. जब कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं तो वो कौन कौन सी अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, कैसे शेयर होता है, that is discussed in the protocols. So the first type of the protocol is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Second one is FTP, File Transfer Protocol. Third is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Fourth is TCP IP, Transmission Control Protocol over the Internet Protocol. So the first one, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. द सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स विच आर नीडेड टू ट्रांसफर द फाइल्स. जब हम किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो द सेट ऑफ द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो ओवर द फाइल. फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गई, इमेजेस हो गई, साउंड, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल्स वी कैन शेयर ओवर द इंटरनेट. So this hypertext is structured text that uses logical links. Logical links, that means hyperlinks between the nodes. Nodes मतलब कि client server and the main server. HTTP is the protocol to exchange or transfer hypertext. यहाँ पर आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो? hypertext. hypertext text मतलब कि written documents. जब वो डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? या तो वेब डॉक्यूमेंट्स और हाइपरटेक्स्ट या फिर वेब पेजेस. ओके, तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज HTTP. व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द फाइल्स एंड फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स ओवर द फाइल्स, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. The protocols are used to exchange file between the computer on internet. जैसे आप किसी फाइल को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो जब आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी फाइल को ओवर द इंटरनेट, तो देन द प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो इज कॉल्ड एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यहाँ पे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करते हैं ओवर द इंटरनेट, देन द प्रोटोकॉल्स व्हेन वी आर फॉलोइंग दैट इज कॉल्ड एज TCP.
FTP, File Transfer Protocol. This is based on the TCP network, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP जो ट्रांसमिट करता है डेटा को, वो इसको कंट्रोल करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड और रिसीव ईमेल्स. जो प्रोटोकॉल आपके सेंड और रिसीव करते ईमेल्स को, मेल्स को, एंड द यूजर अलाउज टू सेव द मैसेजेस इन देयर मेल बॉक्स. जब यूजर अपने मेल बॉक्स के अंदर मैसेजेस को सेव करके रख सकता है, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. लास्ट होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP एंड IP इज कॉल्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल. यहाँ पर आपको दो प्रोटोकॉल के नाम दिख रहे हैं. फर्स्ट है TCP, दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और सेकेंड है IP, दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये दोनों मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं यूज्ड इन द इंटरनेट. इंटरनेट के अंदर सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं. यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई सा डेटा शेयर करना चाहते हो, तो ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में अपना डेटा बन जाता है, और अपने पैकेट्स, छोटे छोटे जैसे पैकेट्स होते हैं ना, वैसा पूरा डेटा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, और देन वो ट्रांसफर होता है सोर्स मशीन से आपकी डेस्टिनेशन मशीन पे. वो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, आपका पूरा की पूरा डेटा नहीं ट्रांसफर होता है. डेटा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचता है. फिर क्या होता है, TCP वेरीफाई द डेटा. TCP क्या करता है, उस डेटा को वेरीफाई करता है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. और जब पूरा डेटा उसके पास में कलेक्ट हो जाता है, तो उसको डिटेक्ट करता है वेदर इट इज एरर, वेदर इट इज विथ एरर और एरर फ्री. और उसके बाद में जब पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो उसको कंबाइन करता है और फिर ट्रांसमिट करता है. तो ये काम होता है TCP IP का. TCP IP हमेशा डेटा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचाने का काम करती है. द नेक्स्ट है वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग दैट मीन्स जो वेब को होस्ट कर रहा है. होस्ट मतलब कि एक्सेस कर रहा है, जो उसका लॉन्च करने वाला है, जो उसको कंट्रोल करने वाला है. A web hosting service is a type of internet hosting services that allows individual and organizations to make their websites accessible via the World Wide Web. जो उसको लॉन्च कर रहा है और जो उसको होस्ट कर रहा है, उसको हम वेब होस्टिंग बोलेंगे. और वो वेब होस्टिंग कैसी होगी, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे एक्सेसिबल होगी. दिस फैसिलिटी अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट्स. यहाँ पर हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है, तो वो वेबसाइट कैसी होती है, ग्लोबली एक्सेस्ड होती है. दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. वेब होस्ट आर द कंपनीज that provide space on a server for their clients to use it. They own or lease these space. या तो वो परचेज भी कर सकते हैं, they have their own servers when the company members can access their websites. उसके clients और उसके members उसको access कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग. जिसमें हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है, और जब हमारी नई वेबसाइट लॉन्च होती है, उसे हम वेब होस्टिंग बोलते हैं. So I hope all the topics of the webs are very clear to you. So first we discussed about the World Wide Web, then we discussed about its components, the working of the web, and the protocols used on the web and web hosting. I hope all these topics are very clear to you. Thank you students for watching this video.